1:30 में ऐलान किया जाएगा वर्ल्ड कप की टीम का और सीधे आपको लेकर चलता हूं पालीकल, जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और 15 खिलाड़ियों की जो टीम है और 3 इसके साथ स्टैंड बाय खिलाड़ी हैं, उनकी घोषणा होनी। और आपके स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हैं अजीत अगरकर चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर हाल में बने हैं 1 महीने पहले, और पहली टीम जो उन्होंने चुनी वो एशिया कप की थी। तो बहुत बड़ा चैलेंज अब यहां पर चेतन शर्मा हमारे साथ होंगे जो इससे पहले चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स थे। अब अजीत अगरकर टीम का ऐलान करते हुए। रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या इज द वाइस कैप्टन, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज एंड कुलदीप यादव। Use the mic. Rohit, India has got a trophy, ICC trophy since 2013. Last time India played a World Cup and won was in India in 2011. Any pressure as a captain this time around to deliver? Nothing, not at all. We just want to go out there and play cricket and play to the best of our ability. ऑलमोस्ट जो ये टीम है लगभग सैटरडे थी, लगभग एक्सपेक्टेड लाइफ है, कोई सरप्राइज नहीं है। कोई एक ऐसा नाम है जो चीफ सेलेक्टर आपको लगा कि भाई ये होना चाहिए था, भाई इसका कोई एक या दो नाम? आई मीन डिस्कशंस तो हमेशा होते ही है, क्योंकि थिंक प्लान तो आपका बहुत पहले से शुरू होता है। ये नहीं कि 1 महीना पहले आप वर्ल्ड कप के आते हो। बट आई थिंक अ लॉट ऑफ द गाइज पिक देमसेल्व्स। आई थिंक मोर नाम, क्योंकि देयर वर कपल ऑफ फिटनेस इश्यूज व्हिच वी हैड टू look at, which fortunately, you know, the big players for us, all 3 have come through who've had long-term injuries. Tino are okay. KL is obviously looking good. Discussions तो बाकी नामों के होते हैं, but you try and find the best balance, and we feel this gives us the best balance or gives us the best chance to try and do well in this World Cup. Hi Ajit. Just wanted to know why you just announced the 15-member squad. Are there any players that you've sounded out to be on standby? Because you know you can make changes to 27, and certain players that you have, you've not really seen them play some international cricket. And could you just elaborate on KL and what were you seeing in him and then decided to pick him the last couple of days? That's a long question. What was the first part? Was Have you sounded off? yeah, I mean, look, there are 17 guys here and KL is not here. That makes it 18. So, you know, those 3 guys would know you want that cover, whether it's for a wicket keeper, whether an extra seamer. Tilak's with us as well. You know, you hope you don't require. I mean, this is the 15 that we've picked. You're not going to change it unless you have to, and that's only because of injury. You pick the 15 because you trust in them to do the job that's required. And with KL, I think he was part of the camp in Bangalore. Looked really good there. There were a couple of, just picked up that niggle, spoke about it just before the Asia Cup, but has gotten over it. Has played a couple of games over the last 2 days. You know, kept for 50 overs, batted, I think almost the duration of 50 overs, of 35 overs or whatever it is, and looks good. So you know, he's an important player for us, and we're happy to have him. Ajit, I know you have Kuldeep who takes the ball away from the left-hand batsman, and there's a plethora of left-handed options in top order and most of the teams that are playing. So was there, what kind of discussions, if any, were there regarding fielders picking batting options? I mean, clearly there will be discussions, considering we have Ravindra Jadeja and Akshar Patel who both spin the ball into the left-hander. But like I said before, you know, both give us depth in batting. Apart from their bowling,
which certainly helps. And like you said, Kuldeep takes the ball away. 50 overs, perhaps. I mean, yes, you would ideally want somebody, an off spinner, but this gives us the best balance. And the seamers generally bowl a lot in one-day cricket as opposed to T20 cricket. Perhaps you are a little bit more under pressure if you don't have an offie. But no, I think at the moment we are quite happy with the bowlers that we have. Just wanted to know that, as you said, okay, you were well batting and he's keeping his batting. So, are you considering him as the first choice wicket-keeper batsman in this squad? I mean, look, it's a good headache to have, isn't it? I mean, Ishan played a lovely innings, generally opens the innings. You'd rather have that headache to deal with than not. KL, you can see KL's record in one-day cricket is fantastic. So when he comes, there will be a conversation, but at least you have two options now who you can pick with. I think eventually the captain coach probably sit down and look at what is best for the team on any given day or required day. But like I said, we are happy to have two options who will fight for a place in the team rather than the other way around. Rohit, the last 2 years we tried to keep it in the events monetization. ICC T20 in Dubai, the Asia Cup there, in Australia. It's 50 over World Cup. How much space does it give you? Are you happy that you're going to play 50 World Cup? You need a lot of breathing space to think, flag tactically. Yeah, a 50 over format is a different format altogether, and especially the format itself, where you play 9 league games and then the semis and the finals, which is 11 games. We played that World Cup in 2019, and we know, there's always chance for you to make a comeback if you lose 1 or 2 games here and there. We saw last time around how England made a comeback into the semis and the finals, after losing few games. So it does give you a little bit of extra time to think about your combinations, to think about your team's strategy, your plan, what you want to go out there and execute as a group. Wherein T20 format can be slightly different, where you've got only the last year we played, we know we had to beat Pakistan, we had to beat South Africa to qualify into the semis. But this is a different format where you play 9 times against 9 opposition, and then the semis and the finals. So even if you don't start well, there's always a good chance that you can make into the tournaments, which is a good sign, and it is all the same for every team, not just for us. But yeah, to answer your question, yes, it does give you a little bit of breathing space. Yes. Last year in November, actually kind of moved the focus away from T20 and directly towards one day. Ajit has come in quite late in the plans. Are you and the rest of the team management happy with the primary squad that possibly you were actually shortlisted in November last year? Yes, very much. That's the best we could do. We looked at everything, every possible way of getting the right players in. There will be players who will be missed out, but that happens every World Cup. There's no surprises. From beginning, if you see, there is always a disappointment, when some players misses out. But you can only get 15 in, and the talent that we have in India, obviously it's hard. So some of the guys will be disappointed, but it happens. I've gone through it. I know how it is. So you just have to keep your chin up, be ready for the opportunity whenever it comes, and look forward. As simple as that. For us, it was about how we can create a good balance, good all-round options within us. So we looked at everything, and then this is possibly the best 15 we could get.
और जो भी बड़ी बड़ी बातें होंगी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जा रही है वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो थी कि आज 15 खिलाड़ियों का ऐलान करना था और इन खिलाड़ियों को आप फेरबदल कर सकते हैं 28 सितंबर तक, आपको बता दें। और ये एक जो है टीम ऐसी है जिसमें आईसीसी ने कहा था कि 5 सितंबर तक आपको ऐलान करना है और 28 सितंबर तक आप इसमें अगर कोई चोटिल होता है खिलाड़ी तो इसमें फेरबदल कर सकते हैं। फिलहाल एक बार फिर आपको मैं 15 खिलाड़ियों के नाम बता देता हूं। वैसे आप यहां पर पैनल जो देख रहे हैं यहां पर बहुत बिल्कुल एक ही जैसी कहानी है। देश में एक तरफ क्रिकेट या पॉलिटिक्स, हर तरफ दो ही इंटरेस्ट होता है। कहानी कुर्सी का चल रहा था तो अब कहानी ट्रॉफी का है। यहां पर तो बात करेंगे कहानी ट्रॉफी में। प्राची भी है, इनसे कहानी ट्रॉफी में, ट्रॉफी हमें मिलती है या नहीं मिलती है। हमारे दिग्गज पैनलिस्ट यहां पर पॉलिटिकल एनालिस्ट, लेकिन हर किसी को क्रिकेट से बहुत प्यार है, मैं आपको बता दूं। फिलहाल एक बार मैं आपको बता दूं कि टीम क्या है। रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल जो कि इंजर्ड थे, टीम से बाहर थे, अब वो श्रीलंका पहुंच गए तो टीम में उनका नाम यहां पर शामिल किया गया है। हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव। मैं कहूं कि भाग्यशाली हैं या ये टीम की जरूरत है, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, इस पे बात करेंगे आगे। और इसके अलावा यहां पर टॉसअप था चहल, वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर के बीच, तो शार्दुल ठाकुर को यहां पर लेके गए। ये भी थोड़ा सा चौंकाने वाला फैसला था, लेकिन बाकी 15 में से अगर 13 खिलाड़ी बताएं तो ऑटोमेटिक पिक यहां पर होते हैं। हमारे साथ चेतन शर्मा जी हैं जो पूर्व चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स थे और हाल ही में 1.5 महीने पहले ही अजीत अगरकर ने जो है उनकी कुर्सी संभाली है। तो ये जो पूरा विजन था, चेतन जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ये आप ही का था। तो क्या बेस्ट 15 यही है इंडिया के, हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन 15 हैं जो पिक हुए हैं, या आपको लगता है कि कोई ऐसा खिलाड़ी था जो इनमें शामिल हो सकता था, इस टीम में नहीं? नहीं समीप, आई थिंक सो ये बेस्ट आपके पास ऑप्शंस है, बिकॉज जो अभी आपने कहा कि वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर और चहल में से मतलब एक आपके पास ऑप्शन था, लेकिन आपको शार्दुल ठाकुर रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ मैचेस ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको 4 फास्ट बॉलर्स के साथ और 2 स्पिनर्स के साथ खेलना पड़ेगा, और कुछ जगह ऐसी हैं, आप चेन्नई, दिल्ली जैसी कुछ ऐसी जगह है जहां आपको 3 स्पिनर्स खिलाने होंगे और 3 मीडियम पेसर्स, 3 फास्ट बॉलर्स जिसमें हार्दिक पांड्या इंक्लूडेड होंगे। 6 बेसिकली 2 ऑलराउंडर्स, 4 मेन गेंदबाजों के साथ भारतीय टीम खेलना चाहेगी। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका आता है। कुछ अड़कने जरूर आई होंगी, कईयों का ये कहना होगा कि राइट आर्म ऑफ स्पिनर नहीं है, बट मेरी यही सोच है जो हम पिछली जनवरी से अभी तक आया, बिकॉज जो अजीत अगरकर ने भी कहा ना, तैयारी सिर्फ 1 महीना पहले से नहीं होती, कम से कम 8 से 9 महीने पहले तैयारी शुरू हो चुकी थी वर्ल्ड कप की। और तभी से ये सोच थी कि अगर आप कुलदीप यादव को रखेंगे जिनका बॉल पड़ने के बाद बाहर जाता है, आपको अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा रखने बहुत जरूरी है, बिकॉज 8 नंबर की बैटिंग को लेकर हर समय एक चिंता है टीम मैनेजमेंट में भी कि वहां पर आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो अगर समस्या आ जाए तो आप बल्लेबाजी करके एक 20-25 रन बना दे या मेन बैट्समैन खेल रहा है उसके साथ निभा दे। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए मेरे अकॉर्डिंग यही टीम होनी चाहिए थी और यही टीम हुई है समीप। लेकिन ऑल इन ऑल अगर बात करें, आप चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर रहे 3.5 साल से चेतन जी, और आपकी टीम में अगर मैं बात करूं तो आप चहल और वॉशिंगटन सुंदर पर बहुत जोर डाल रहे थे। 1 डायमेंशनल स्पिन अटैक है। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा एक ही टाइप के स्पिनर है। कुलदीप यादव आपके इकलौते ऐसे स्पिनर हैं जो अलग है, और बाकी अगर आप अटैक देखें तो लगभग एक जैसा है। आप शार्दुल ठाकुर को लेके जाते हैं आप 8 नंबर में बल्लेबाजी करवाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर के टॉप ऑर्डर पर आपको भरोसा नहीं है। 8 नंबर ने क्या किया पिछले मैच में हमने देखा, 3 रन बनाए पाकिस्तान के खिलाफ। तो ऐसे में थोड़ा बहुत यहां पर जो टीम की सिलेक्शन है, ऐसा लगता है कि कोच और खासकर रोहित शर्मा, शार्दुल की तरफ उनका झुकाव कुछ ज्यादा ही था। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे समीप मैंने बोला ना कि अगर आपको ऑलराउंडर के रूप में एक तेज गेंदबाज चाहिए तो आपके पास हार्दिक के सिवाय पूरे इंडिया में अगर आप घूम के देखें तो आपके पास शार्दुल ठाकुर बचते हैं, और आपको 2 तेज गेंदबाज ऑलराउंडर्स जरूर चाहिए, जैसे आपके पास 2 ऑलराउंडर स्पिनर्स हैं। अब आप अक्षर पटेल और जडेजा की बात करें, हार्दिक पटेल, हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर की बात करें, ये आपको चाहिए थे। अगर आप कई लोग, जैसे मैं चर्चाएं सुन रहा था, कई लोग ये बात कर रहे थे कि वॉशिंगटन सुंदर आ सकते हैं, बट वॉशिंगटन सुंदर के लिए समस्या ये हुई कि वो ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं।
मतलब इतना ज्यादा स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं रहे हैं भारतीय टीम के। अक्षर पटेल बहुत ज्यादा स्कीम ऑफ थिंग्स में रहे हैं, इसलिए अक्षर पटेल जो को मैचेस खेले उन्होंने वो भी रखना बाहर है। ज्यादा चेतन जी, पसंद चहल आपके पसंदीदा स्पिनर थे इस व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए, वो भी बाहर है। आपने इतना ग्रूम किया वॉशिंगटन सुंदर को, आपने इतना ग्रूम किया। चलिए, थोड़े इंजरी प्रोन थे। केएल राहुल भी मैचेस नहीं खेले हैं, श्रेयस अय्यर भी कुछ भी नहीं खेले हैं, एक मैच खेले, 16 रन बनाए उन्होंने। तो ऐसे में मैचेस खेलने की अगर बात करें तो ये शायद क्राइटेरिया नहीं हो सकता था। आधी टीम ऐसी है जो इंजरी से लौट रही है, तो इसमें बड़ी समस्या है। प्राची, बिल्कुल, देखिए जैसे टीम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये टीम भारत को वर्ल्ड कप जिताएगी या नहीं जिताएगी, इस टीम का सिलेक्शन कैसे हुआ है, वर्ल्ड कप लाने की जो हमारी उम्मीद है वो टीम कितना पूरा कर पाएगी, ये इन 15 खिलाड़ियों के कंधे पर जिम्मेदारी है। और ये 15 खिलाड़ी कैसे सेलेक्ट किए गए हैं, क्या क्या इनकी खूबी है, इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। चेतन जी, चूंकि भारत में होना है वर्ल्ड कप और भारत की पिच की बात करें तो स्पिन यहाँ की पिच है, ऐसे में जैसा बार बार अभी समीप भी बोल रहे थे कि चहल को ना लाना, अश्विन को ना लाना, इसके पीछे क्या वजह है? ना मेरे से पूछा है समीप? जी जी जी, चेतन जी आपसे। जी जी, देखिए, अगर आप किसी को ला सकते थे, अगर जो सोच में, जो स्कीम ऑफ थिंग्स में उस समय था, तो आप वॉशिंगटन सुंदर को ला सकते थे। वो अक्षर पटेल के स्थान पर आप सिर्फ स्वैप कर सकते थे, क्योंकि आपको एक ऑलराउंडर के रूप में चाहिए। अश्विन, ठीक है, हम अश्विन की बात कर रहे हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप मेरे से मेरी सोच सुनेंगे, तो वॉशिंगटन सुंदर की 100% काफी समय डिस्कशन हुई होगी। युजवेंद्र चहल की आप बात कर रहे हैं, कुलदीप यादव और युजवेंद्र में से एक आते हैं। अगर कहीं ना कहीं अगर आप ऑफ स्पिनर की बात करेंगे तो वहां अक्षर और वॉशिंगटन सुंदर की चर्चा हुई होगी। ये दो चर्चाएं बहुत इंपॉर्टेंट हुई होंगी आज मीटिंग के अंदर, कि आपको क्या ऑफ स्पिनर चाहिए। फिर बेसिकली कैप्टन के ऊपर बात आ जाती है कि कैप्टन क्या सोचते हैं, कितने हद तक ऑफ स्पिनर की जरूरत उनको पड़ेगी, क्या वो ऑफ स्पिनर को खिलाने में सक्षम रहेंगे, टीम के अंदर वो खेल पाएंगे। ये कुछ चीजें हैं जो काफी डिस्कस हुई होंगी। तो चहल तो रह गए इसलिए क्योंकि कुलदीप यादव वहां है। वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल, जैसे मैं कल समीप को भी ये बात कह रहा था, तभी समीप ने थोड़ी सी, कहते हैं ना, आग हल्की सी लगाई है जब मैं बात कर रहा था कि अक्षर पटेल कहीं ना कहीं हो सकता है, आउटसाइड चांस कहा था मैंने, कि अगर लास्ट मिनट में आप सोचो कि ऑपोजिशन के पास 3-3, 4-4 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, आपको क्या पता बीच में ऑफ स्पिनर्स की जरूरत पड़ जाए, तो लास्ट मिनट के अंदर अक्षर पटेल के स्थान पर वॉशिंगटन सुंदर आ जाए, जो श्रीलंका में इस समय ट्रेवल कर रहे हैं टीम के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। चेतन जी, आप भी पॉलिटिक्स से जुड़े रहे हैं और आप भी जो है क्रिकेट और पॉलिटिक्स दोनों से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ यहाँ पर कहानी कुर्सी का एक बहुत ही जबरदस्त एक लोकप्रिय शो जो चलता है, प्राची उसका एंकर कर रही थी अभी, और इस टीम के ऐलान होने से पहले यहाँ पे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की पूरी टीम यहाँ पे पैनल बैठी हुई है। आज सबसे पहले हाँ आपसे पूछना, मेरा एक सवाल है। नहीं सवाल नहीं, आपको तो जवाब, आपको लग रहा है वर्ल्ड चैंपियन बनेगी, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात क्रिकेट से जुड़े रहे, अमित शाह भी जुड़े रहे, अब उनके बेटे जो सेक्रेटरी हैं, तो ये पॉलिटिक्स और क्रिकेट का तो बहुत पुराना रिलेशन है। बहुत पुराना जी। एनकेपी साल्वे को, एनकेपी साल्वे, बिल्कुल, इंडिया में क्रिकेट को बढ़ाने का, बिल्कुल, शरद पवार तो उनके बाद में आए। तो नहीं, देखिए मेरा सवाल जो है, मतलब सबसे है कि ये पोटेंशियल वर्सेस परफॉर्मेंस। रविचंद्रन अश्विन प्रूवन परफॉर्मर है जी, उनको इसी टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले भी कई बड़े टूर्नामेंट से उनको बाहर रखा गया। बिल्कुल, ऐसा क्या कारण है? और पोटेंशियल जो केएल राहुल का है वो परफॉर्मेंस में कब बदलेगा? वो क्राइटेरिया क्या होता है कि एक परफॉर्म कर रहा है लगातार, वर्ल्ड क्लास आपका स्पिनर है, उसको आप बाहर रखते हैं। भाई सिलेक्शन का आधार तो ये होना चाहिए कि जो बेस्ट आपका बॉलर है या बैट्समैन है वो सिलेक्ट हो, लेकिन आप उसको बाहर रखते हैं और एक ऐसे व्यक्ति को जो इंजरी प्रोन है बहुत ज़्यादा। मैं केएल राहुल के पोटेंशियल पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ जी, लेकिन जिस तरह से वो टीम के अंदर कम रहते हैं, बाहर ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे में टीम के जो बाहर बैठे खिलाड़ी हैं उनको क्या मैसेज जाता है कि किस तरह सिलेक्शन का आधार क्या होता है? परफॉर्मेंस या सिर्फ पोटेंशियल, या कुछ फेवर्ड लोग होते हैं जिनका पोटेंशियल देखा जाता है? चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर चेतन जी, आपने सवाल और ये बयान सुना यहाँ पर प्रदीप जी का, बताइए, आप बताइए जरा। मैं तो जर्नलिस्ट हूं, मैं बता सकता हूं, बड़ी कंट्रोवर्सी बात है। जर्नलिस्ट तो कंट्रोवर्सी तो करोगे यार, वो तो नहीं जो सच है वो बोलते हैं। लेकिन
नहीं देखिए, जब हम लोग देखिए जिस समय मैं चेयरमैन था उस समय अश्विन हमारे साथ थे, हमें बहुत भरोसा था अश्विन के ऊपर। अब देखिए सर, बहुत डिपेंड करता है कि न्यू सिलेक्शन कमेटी है, उनकी सोच क्या है। जो हमारी सिलेक्शन कमेटी थी या इस सिलेक्शन कमेटी के साथ ही मैं था पिछले कुछ 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, बट इस समय क्या सोच चल रही है, अश्विन स्कीम ऑफ थिंग्स में थे, मतलब अंदर की बात है तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता उन चीजों को। स्कीम ऑफ थिंग्स में वॉशिंगटन सुंदर भी आपकी टीम में थे और चहल भी थे, तो ये 4 स्पिनर्स रखे थे कि इनमें से कौन किस समय नीड ऑफ द आवर पे आप क्या लेके चलेंगे। तो अब क्या डिस्कशन अंदर हुई, वॉशिंगटन सुंदर पे क्या बात हुई, रविचंद्र अश्विन पे क्या बात हुई, वो कहना बहुत मुश्किल है। जहां तक केएल राहुल का सवाल है, आप देखिए केएल राहुल को मतलब कैप्टन और मैनेजमेंट को बहुत भरोसा है। मतलब कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर आप बहुत ज्यादा भरोसा जताते हैं, तो जब आप भरोसा जताते हैं कॉन्फिडेंस लेवल बहुत चेतन जी होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा है उनके ऊपर। चेतन जी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और बहुत तगड़े ऑलराउंडर भी हैं और आज भी खेलते हैं यहाँ पर। विजय जी बताइए। चेतन जी से मैं एक चीज समझना चाहता हूँ कि अभी हम लोग वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस कर रहे हैं। कल एशिया कप देख रहा था तो नेपाल जब बैटिंग कर रहा था तो जो हमारी परफॉर्मेंस थी खासतौर से गेंदबाजी और फील्डिंग, वो हमें वर्ल्ड कप तक ले जा रही है। और दूसरी बात, जैसे हम पॉलिटिक्स की वर्ल्ड चैंपियन मतलब वर्ल्ड चैंपियन बना रही है। और दूसरी बात, जैसे पॉलिटिक्स में आजकल एक बड़ा बदलाव आया कि सिर्फ विनेबिलिटी इज द फैक्टर। क्या क्रिकेट में भी यही है इस टीम को लेकर? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल गेंदबाजी थोड़ी उस स्तर की नहीं हुई जब जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो कभी कभी गेंदबाजी में हो जाता है, और होना नहीं चाहिए। और जो फील्डिंग की आपने बात की, बिल्कुल होना नहीं चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं है फील्डिंग के ऊपर। देखिए, जिस मर्जी कंडीशंस में आप खेल रहे हैं, आपको अच्छी फील्डिंग करनी जरूरी है। हम लोग कहते हैं फील्डर्स, आप एक दोस्त बनिए गेंदबाज के। अगर आप दोस्त नहीं बनेंगे तो गेंदबाज तो बेचारा वैसे चला जाएगा। अगर आप 3-3 कैचेस छोड़ेंगे तो गेंदबाजी किसी स्तर तक थोड़ी ढीली रही, लेकिन फील्डिंग तो बहुत खराब थी। जहां तक आपने विनेबिलिटी की बात की, देखिए जो जीता वो सिकंदर, आपको जीतना तो पड़ेगा और जीत के ऊपर ही सब कुछ है, जीत के ऊपर ही निर्भर रहता है। और हम तो यही दुआ करेंगे, यही उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम इससे बेस्ट टीम आपकी नहीं हो सकती। देखिए, इक्का दुक्का प्लेयर हम जरूर डिस्कस कर रहे हैं कि एक ऑफ स्पिनर टीम में होना बहुत जरूरी था, वॉशिंगटन सुंदर को ले आते या अश्विन को ले आते, बट अब नहीं है। ये बेस्ट पॉसिबल टीम मैनेजमेंट ने सोची, कैप्टन ने सोची और सेलेक्टर्स ने सोची, बट जीत ही मूल मंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो मर्जी टीम रखी है, लेकिन आखिर में आप जीतिए, हम सब लोग खुश हैं, आप भी खुश हैं, मैं भी खुश हूं। बिल्कुल नहीं, अभी खुश तो तब होंगे जब जीतेंगे चेतन जी। आपकी बनाई हुई टीम है, आप ही पर ठीकरा फूटेगा अगर हार गए तो, और जीत का सहरा भी आपके सर बांधेंगे अगर जीत गए तो। और विजय जी तो ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन हर्ष जी भी यहाँ पर हैं और वो तो है कि विजय जी डरे ना, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। आज ये तड़का लगा है पॉलिटिकल डिबेट के बीच में, प्राची को रोक कर यहाँ पर हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो गरम गरम कॉफी से ज्यादा रिफ्रेशिंग रहा होगा हमारे सब पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए। हर्ष जी क्या कहेंगे? टीम देख कर लग रहा है, उम्मीद लग रही है जीतेगी ये टीम? मैं तो यही कहूंगा, मैं क्रिकेट थोड़ा सा मैं कम अब देखता हूं। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अब ये वर्ल्ड कप की टीम है, तो यहाँ जो घरेलू मुश्किलें थी, घरेलू पैरामीटर्स पर कौन कितना, ये पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, जैसे हम राजनीति में कहते हैं। बिल्कुल। दुनिया के मंच पर क्या है, वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे या नहीं लाएंगे, दूसरी टीमों के कंपैरिजन में बताइए चेतन जी, हमारी टीम कितनी टिकी? एग्जैक्टली, बताइए चेतन जी। नहीं, देखिए, आपके पास बेस्ट मौका है। आप कंडीशंस को जानते हैं, आप अपने घर पर खेल रहे हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग टीम बनाई है। आपके पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता जीतने का। आप ऑल अराउंड द वर्ल्ड टीम्स की बात करें, इंडियन टीम हर समय बराबर की टक्कर देती है, एक स्टेप ऊपर ही रहती है। तो आपके पास हर फैसिलिटीज इस समय आपके पास है। आप लोकल कंडीशंस की बात कर लें, आप होम कंडीशंस की बात कर लें, आपकी टीम, देखिए जो टीम हम सोच रहे थे वही टीम आई है, लेकिन अब आपको सिर्फ अच्छा प्रदर्शन करना, अपने पोटेंशियल पे खेलना है। बिल्कुल, यानी अच्छा, लेकिन प्राची इससे पहले कि आप ब्रेक लें, आप बताइए ये टीम जीत रही है या नहीं जीत रही है? कैसी लगी आपको ये टीम? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी हाँ, प्राची को कैसी लगी ये टीम? देखिए, मुझे तो उम्मीद है हर एक भारतीय के तौर पर, एक हिंदुस्तानी के तौर पर, कि ये जो टीम है वो बेस्ट ही करेगी और वर्ल्ड कप लेकर ही आएगी। बिल्कुल, और हमारी दुआ भी है। नहीं, हम सब ऐसे सब चाहते हैं, सब दिल से यही चाहते हैं, दिल से यही चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चेतन जी आपका, समीप आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक क्रिकेट का तड़का सियासी खबरों के बीच में लगाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार लगातार कहानी कुर्सी की में चर्चा जारी रहेगी देश की सियासी खबरों पर।